Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also. That will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 23 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विच एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट अभी हुई थी। तो ये वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान हम देखेंगे काफ़ी सारे MOU साइन किए गए थे। 41,299 MOU साइन किए गए, और ये जो MOUs यहाँ पे साइन किए गए हैं 26.33 लाख करोड़ के ये MOUs यहाँ पे साइन किए गए हैं, करेक्ट। एंड ये जो MOU साइन किए गए ना, ये कौन से एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान साइन किए गए थे? तो ये 10th एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान साइन किए गए, जो कि गांधीनगर गुजरात में हुई थी एंड 10 से लेके 12 जनवरी के बीच में हुई थी 2024 में। फिर इसी के साथ साथ ये जो समिट हुई थी ना, इसकी एक थीम याद रखेंगे कि ये इस साल 2023 की 24 की थीम क्या थी? गेटवे टू द फ्यूचर। 35 पार्टनर कंट्रीज एंड 14 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पर। एंड ये जो समिट है इज बीइंग यूज्ड एज अ प्लेटफॉर्म बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टू शोकेस द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो मार्क करके चलेंगे। फिर यहीं पे आप देखेंगे कि 61,000 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया फ्रॉम ओवर 140 कंट्रीज़। एंड यहाँ पर पेट्रोकेमिकल्स, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पावर, ऑयल, गैस, टेक्सटाइल, अपैरल, यहाँ पे इनको डेवलप करने की बात की गई। गुजरात की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन रहेंगे? आचार्य देवव्रत। और कैपिटल क्या है गुजरात की? गांधीनगर। नेक्स्ट, which country became the first vice chair of FAO COFI सब कमिटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट? तो याद रखेंगे इंडिया, ये वो फर्स्ट वाइस चेयर बना है ऑफ FAO, करेक्ट। FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये UN का आम होता है। इनकी एक कमेटी होती है COFI, कमेटी ऑन फिशरीज। उनके जो वाइस चेयर की पोजीशन पहली बार संभाल रहा है वो कौन है? हमारा इंडिया, करेक्ट। मार्क करके चलेंगे। इंडियन डेलीगेशन इसकी एक अभी रिसेंटली 15 से 18 जनवरी के बीच में हेडक्वार्टर्स में, जो कि रोम इटली में, वहाँ पर अभी इलेक्शंस हुए थे जहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया इंडिया को। एंड जहाँ पर इंडिया रोम इटली में जब गई तो इंडियन जो डेलीगेशन थी ना, वो लीड की गई थी जे बालाजी द्वारा। और जे बालाजी यहाँ पे याद रखेंगे ये पहले चेयरपर्सन बन गए हैं ऑफ द इनकमिंग ब्यूरो ऑफ द SCFM। ठीक है, SCFM क्या है? सब कमिटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट। तो ये भी पूछा जा सकता है कि चेयरपर्सन कौन बने हैं इसके, तो वो डॉक्टर बालाजी रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिर कचाई खारेक फ्रूट। ये जो कचाई खारेक फ्रूट है इसको अभी GI टैग मिला किस स्टेट से? तो कचाई खारेक फ्रूट को ये GI टैग मिला अभी रिसेंटली, कहाँ से? गुजरात से। मार्क करके चलेंगे। ये कचाई खारेक फ्रूट कहाँ का है?
गुजरात का आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं, राइट। तो डेट जो होते हैं ना, डेट पाम खजूर, तो उसी से इसको पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसी पेड़ से, राइट। उससे पहले की ये स्टेज होती है फ्रेश स्टेज। तो कचई खारेक, राइट, इसको जीआई टैग मिला। कहाँ से मिला, किस स्टेट से मिला, गुजरात से मिला। ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ और याद रखेंगे, ये जो कच्ची खारेक फ्रूट है ना, इसको एग्रीकल्चर के अंडर जीआई टैग मिला है। एंड ये सेकंड फ्रूट है गुजरात से जिसको जीआई टैग मिला। इससे पहले गिर केसर मैंगो, इसको जीआई टैग मिला था 2011 में, राइट। और ये सेकंड फ्रूट बन गया है फ्रॉम गुजरात जिसको जीआई टैग मिला कचाई खारेक। नेक्स्ट आ जाते हैं आईसीएआई। आईसीएआई ने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया, फॉर डेवलपिंग विजन 2049। तो अभी आईसीएआई ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किस इंस्टीट्यूट के साथ, तो आईआईएम अहमदाबाद के साथ यहाँ पे टाई अप करा ताकि विजन 2049 को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सके, राइट। विजन 2049 क्या है, इसका एम रहेगा आईसीएआई को एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लीडर बनाया जा सके इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल बी एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड आईसीएआई विल सेलिब्रेट देयर 100th एनिवर्सरी इन 2049, इसलिए विजन 2049 यहाँ रखा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द मोबाइल एप्लीकेशन विच विल प्रोवाइड स्टडी मटेरियल इन 22 लैंग्वेजेस। करेक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी स्टडी मटेरियल्स को प्रोवाइड कराने के लिए बच्चों के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की जिसमें हम 22 लैंग्वेजेस में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। उस एप्लीकेशन का नाम रहेगा अनुवादनी एप्लीकेशन, राइट। अनुवादनी एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के अंदर हम देखेंगे 22 लैंग्वेजेस में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, राइट। और 8 शेड्यूल में आ जाती हैं हमारी ये लैंग्वेज, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी लैंग्वेज है, राइट। उसमें ये एआई बेस्ड एप्लीकेशन की मदद से हम स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड कराएंगे, राइट। फिर यहीं पे याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, करेक्ट, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, उनको यहाँ पे बोला है कि आने वाले 3 सालों में 2027 तक आपको स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करना है, जो कि हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, राइट। एंड ये जो इनिशिएटिव है, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ताकि स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा सके, ये NEP 2020 के आधार पर इसको स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड कराया जाएगा, करेक्ट। तो मार्क करके चलेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं अनुवादनी मोबाइल एप्लीकेशन एआई बेस्ड रहेगी, 22 लैंग्वेजेस में इसका कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने लॉन्च किया पहला पायलट प्रोजेक्ट टू मेक जेट फ्यूल फ्रॉम अल्कोहल। आई रिपीट, यहाँ पर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने की बात की गई, एक जेट फ्यूल बनाने की बात की गई यूजिंग अल्कोहल। ये बनाया जाएगा प्राज इंडस्ट्रीज में और ये पायलट बेसिस पे है। पायलट बेसिस पे मतलब ट्रायल बेसिस पे इसको बनाया जाएगा इन प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट में, जो कि पुणे महाराष्ट्र में रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है बैंकिंग एंड फाइनेंस पर। तो अभी येस बैंक बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैंक जिन्होंने कंडक्ट किया एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजैक्शन ऑन RxIL's ITFS प्लेटफॉर्म। आई रिपीट, येस बैंक बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैंक जिन्होंने एग्जीक्यूट किया एन एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजैक्शन ऑन द ITFS। ITFS क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विस प्लेटफॉर्म ऑन RxIL ग्रुप IFFC लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडरी है रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। इस कोलैबोरेशन से क्या होगा, जो भी इंडियन एंड ग्लोबल एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स हैं उनको फाइनेंसिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आपके फैक्टरिंग हो गया, फॉरफिटिंग हो गया एंड अदर फाइनेंस सर्विसेज थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, करेक्ट। ये जो ITFS है, ITFS क्या हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विस प्लेटफॉर्म। ये फंक्शन करेगा एज अ फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म, ताकि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, उसको रीजनल लेवल पर एंड ग्लोबल लेवल को पर प्रोवाइड कराया जा सके टू दीज ट्रेडर्स। ये जो प्लेटफॉर्म है इसको सेटअप कहाँ किया गया था, IFSC जिफ्ट सिटी में, जो कि गांधीनगर गुजरात में है। एंड याद रखेंगे येस बैंक वो पहला इंडियन बैंक बन गया जिन्होंने एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजैक्शन कराया ऑन RxIL's ITFS प्लेटफॉर्म। अगर मैं येस बैंक की बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे यहाँ पर, प्रशांत कुमार, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, एंड 2004 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेबी चेयरपर्सन ने लॉन्च किया 2 यूनिक मल्टीलिंगुअल इनिशिएटिव फॉर CDSL। चीफ कौन है सेबी के चेयरपर्सन, मधाबी पूरीबक। इनकी बात करें तो 2 चीज़ ये लॉन्च की गई हैं यहाँ पे। एक तो है आपका जो इन्वेस्टर्स है ना, वो अपनी कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय CDSL उसको 23 इंडियन लैंग्वेजेस में यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं,
करेक्ट। और इस इनिशिएटिव को आपका CES आपकी जुबानी ये नाम दिया गया। दूसरी चीज़ याद रखेंगे, एक 24/7 चैटबॉट लॉन्च किया गया है कि कोई भी हेल्प चाहिए होगी इन्वेस्टर्स को तो 4 लैंग्वेजेस में ये चैटबॉट वर्क करेगा। तो दो चीज़ हो गई, पहला कि आप यहाँ पे कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा एक चैटबॉट यहाँ पे लॉन्च किया गया। करेक्ट। और ये जो इनिशिएटिव्स थे दे वर लॉन्च इन द 25th एनिवर्सरी ऑफ CDSL विच वॉज हेल्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है LIC। इन्होंने लॉन्च किया एक न्यू एन्युटी प्लान, जीवन धारा 2 प्लान 872। ये जो प्लान है ये अवेलेबल होगा फ्रॉम 22 जनवरी। करेक्ट। एंड ये जो प्लान है ऑफर करता है 11 एन्युटी ऑप्शंस टू पॉलिसी होल्डर्स एंड एन्युटी इज गारंटेड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्लान। यहाँ पर आपको रेगुलर प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन मिलेंगे। एलिजिबिलिटी रहेगी, स्टार्टिंग एंट्री एरियर क्या रहेगा, एंट्री एज का बैरियर 20 ईयर्स। LIC की अगर मैं बात कर दूं तो चेयरपर्सन, इंटर्म चेयरपर्सन यहाँ पे कौन रहेंगे, सिद्धार्थ मोहाटी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। 1956 में इसको इस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इकोनॉमी एंड बिजनेसेस के ऊपर। अभी ICRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। करेक्ट। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ रहेगी स्लो हो गई है टू अंडर 6% इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24, जो कि अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पे रहेगा। और ये क्यों स्लो हुई है, दिस इज बिकॉज ऑफ द खरीफ क्रॉप, स्लो डाउन ऑफ द खरीफ क्रॉप। करेक्ट। जो आउटकम आया इसका उसका कम आया खरीफ क्रॉप का। एंड जो राबी क्रॉप अभी बोई गई हैं, राइट, उनको जो शो किया गया है उसमें भी हमें काफ़ी डिले देखने को मिला, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिली। करेक्ट। इससे हमारी काफ़ी GDP भी इम्पैक्ट हो सकती है। और ये क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से भी लोगों को सम्मानित किया गया। लोगों को नहीं बोलेंगे, बच्चों को यहाँ पे सम्मानित किया गया। 10 गर्ल्स को एंड 9 बॉयज़ को यहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो टोटल में 19 चिल्ड्रंस को यहाँ पे सम्मानित किया गया था। करेक्ट। एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये अवार्ड से दिया जाता है इन बच्चों को। किस लिए दिया जाता है ये, और एक चीज़ और याद रखेंगे, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है ना, इसको नेशनल चाइल्ड अवार्ड के नाम से भी जानते थे पहले। एंड ये इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है फॉर चिल्ड्रन अवार्डेड एनुअली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। 7 फील्ड्स में ब्रेवरी, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, आर्ट्स एंड कल्चर एंड इनोवेशन के लिए यहाँ पे इन बच्चों को सम्मानित किया जाता है, जो कि आपके 5 से लेकर 18 साल की एज के होते हैं। एंड इसके अंदर एक मेडल, सर्टिफिकेट, एक साइटेशन एंड एक कैश प्राइज ऑफ 1 लाख रुपीज़ से यहाँ पे सम्मानित इनको किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। अभी IPS ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी, इनको अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। आई रिपीट, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ACC के द्वारा IPS ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी, इनको अपॉइंट कर दिया गया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल विद इफेक्ट राइट फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टिल 30 नवंबर 2025 तक। ये रिप्लेस किनको करेंगे, या फिर हम बोले रिप्लेस नहीं, ये सक्सीड किनको करेंगे, तो रश्मि शुक्ला जी को ये सक्सीड करेंगे। करेक्ट। जो कि डायरेक्टर जनरल थी ऑफ सशस्त्र सीमा बल फ्रॉम मार्च 2023 से जनवरी 2024 तक। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, प्राइंग टू दिस अपॉइंटमेंट जलदीप सिंह चौधरी ये सर्व कर रहे थे एज द स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। एंड रश्मि शुक्ला जी वॉज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र ऑन 4 जनवरी एंड शी बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू होल्ड दिस पोजिशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट पर आते हैं फिर एक्विजिशंस एंड मर्जर्स। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2500 करोड़ रुपए यहाँ पे रेज किए बाय डिसइन्वेस्टिंग 3.5% स्टेक इन NHPC इंडिया लिमिटेड। राइट। ऑफर फॉर सेल के थ्रू 3.5% यहाँ पे इन्होंने डायल्यूट किया एंड 2500 करोड़ रुपए यहाँ पे रेज किए। नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। तो अभी जाक्सा क्या है, ये स्पेस एजेंसी है जापान की। राइट। इनके द्वारा रिसेंटली ये वो, या फिर हम बोलें ये वो 5th कंट्री बन गई है जिन्होंने लैंड किया ऑन द सरफेस ऑफ मून। पहली कौन सी थी, USA, फिर रशिया, फिर चाइना, फिर इंडिया, और अब जापान वो 5वीं कंट्री बन गई है जिन्होंने सरफेस ऑफ मून पे लैंड किया। इन्होंने स्लिम स्पेसक्राफ्ट की मदद से इस पे लैंड किया। स्लिम क्या है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। करेक्ट। एंड इन्होंने शिहोली क्रेटर पे लैंड किया है ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। स्लिम मिशन का नाम रहेगा स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। जापान का है, जाक्सा के द्वारा लॉन्च किया गया एंड इससे जापान 5वां नेशन बन गया जिन्होंने मून पे लैंड किया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर ईरान के IRGC क्या है, इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स। इनके द्वारा सोराया सैटेलाइट इसको लॉन्च किया गया है। ये सोराया सैटेलाइट को किसकी मदद से लॉन्च किया गया, उस रॉकेट का नाम बताओ।
क्वाम 100 सैटेलाइट कैरियर रॉकेट ये रहेगा। इसकी मदद से सोराया सैटेलाइट को स्पेस में ले जाया गया। करेक्ट। किसके द्वारा? ये ईरान की सैटेलाइट है। ईरान में भी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये मार्क करके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। फिर अमित शाह ने लॉन्च की एक बुक जिसका टाइटल रहेगा असम्स ब्रेवहार्ट लचित बारफुकन। राइट, अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया असम्स ब्रेवहार्ट लचित बारफुकन, जिसको ऑथर किया गया है अरूप कर दत्ता जी के द्वारा। इस बुक को रिलीज किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हिमंता बिश्वा शर्मा, एक ड्यूरिंग एन इवेंट जो कि असम गुवाहाटी में हुआ था। इस बुक को पब्लिश किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम इन इंग्लिश। इसको ट्रांसलेट किया गया है 24 इंडियन लैंग्वेजेस में। एंड ये जो बुक है इट स्पीक्स अबाउट लचित बारफुकन, जो कि 17th सेंचुरी के अहोम जनरल थे जिन्होंने मुगल इन्वेजन के खिलाफ लड़ा था इन असम। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ वन लाइनर रिवीजन पर। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की बात की थी, कौन सा एडिशन था? 10वां एडिशन था। यहाँ पे 41,299 MOU साइन हुए थे। 26.33 लाख करोड़ रुपए के ये MOUs रहेंगे। देन इंडिया पहला वाइस चेयर बन गया ऑफ FAO COFI सब कमिटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट। देन गुजरात कचई खरेक, ये फ्रूट है जिसको भी GI टैग मिला। सेकेंड फ्रूट है फ्रॉम गुजरात टू गेट GI टैग। ICI ने कोलैबोरेट किया IIM अहमदाबाद के साथ टू डेवलप विजन 2049। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया टू मेक एजुकेशनल स्टडी मटेरियल इन 22 लैंग्वेजेस बाय यूटिलाइजिंग अनुवादिन ऐप। दैन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने लॉन्च किया पहला पायलट प्रोजेक्ट टू मेक जेट फ्यूल फ्रॉम एल्कोहल। दैन इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर विजिटेड टू ईरान। येस बैंक, ये वो पहला इंडियन बैंक बन गया जिन्होंने कंडक्ट करा एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजैक्शन ऑन RXIL's ITFS प्लेटफॉर्म। सेबी चेयरपर्सन इन्होंने लॉन्च किया 2 यूनिक मल्टीलिंगुअल इनिशिएटिव्स फॉर CDSL। LIC ने लॉन्च किया न्यू एन्युटी प्लान जीवन धारा फेज 2 प्लान 872। दैन ICRA प्रोजेक्ट्स GDP ग्रोथ रेट टू मॉडरेट बिलो 6% इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 24। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम इन्होंने कन्फर किया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 टू 19 चिल्ड्रन। IPS ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी इनको अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ शस्त्र सीमा बल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेज किया 2500 करोड़ रुपीस बाय डी इन्वेस्टिंग 3.5% स्टेक इन NHPC लिमिटेड। जाक्सा ने सक्सेसफुली लैंड किया स्लिम स्पेसक्राफ्ट को लैंडर को ऑन द लूनर सरफेस, और जापान इससे 5वां नेशन बन गया टू लैंड ऑन द मून। एंड ईरान का IRGC इन्होंने सोराया सैटेलाइट को लॉन्च किया यूजिंग क्वेम 100 सैटेलाइट कैरियर रॉकेट। एंड अमित शाह ने लॉन्च किया बुक टाइटल असम्स ब्रेवहार्ट लचित बारफुकन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपको और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराया जा सके। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी रिलीज किया गया, हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा ये रिलीज किया जाता है और इसमें इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग पूछी गई है कितनी रहेगी, तो 80 पोजीशन पे आ जाता है इंडिया की पासपोर्ट रैंकिंग। फिर इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इंडिया को वीजा फ्री एंट्री कितनी कंट्रीज में है अभी, तो 62 कंट्रीज में इंडियंस वीजा फ्री जा सकते हैं, राइट, और रैंक रहेगी 80। वहीं पर अगर पूछा जाए 2023 में इंडिया की क्या रैंकिंग थी, तो 2023 में इंडिया की पोजीशन थी 83rd और 58 कंट्रीज को यहाँ पे वीजा फ्री एंट्री मिलती थी। और अब 2024 में अगर हम देखें तो 62 कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री और 80 रैंक रहेगी, मतलब इंप्रूव हुई है। टॉप पोजीशन पे 6 कंट्रीज आ जाती हैं। कौन कौन सी हैं 6 कंट्रीज? वो ये हैं आपकी फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन। ये आपकी फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है। लोएस्ट पोजीशन पे या फिर हम बोले वीकेस्ट पासपोर्ट किस कंट्री का रहेगा ग्लोबली, वो है अफगानिस्तान का। 104th रैंक पे आता है ये और 28 नेशंस को यहाँ पे सिर्फ एक्सेस है वीजा फ्री जाने का इनके पास। हेनलैंड पार्टनर्स की बात करें तो डॉक्टर ज़ुरेक स्टेफन यहाँ के CEO रहेंगे। हेडक्वार्टर लंदन UK एंड 1997 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन MSCI EM इंडेक्स। MSCI क्या है? मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। ठीक है, इसमें इंडिया की रैंक क्या पूछी गई, क्या रहेगी, तो इंडिया की रैंक आ जाती है सेकंड। फर्स्ट पोजीशन किसकी आती है, वो है चाइना की, राइट। तो याद रखेंगे यहाँ पर इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन दिस MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। और ये MSCI EM इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, ये आपका जो इन्वेस्टेबल बेंचमार्क होता है जो इंडेक्स का ऑफ द इक्विटी मार्केट इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। यहाँ पे 24 एमर्जिंग कंट्रीज का यहाँ पे एक मिड कैप एंड लार्ज कैप सेगमेंट रहता है, उनको कैप्चर किया जाता है, करेक्ट। तो सेकेंड रैंक रहेगी इंडिया की इन दिस MSCI एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में। फर्स्ट पोजिशन पे आ जाता है चाइना।
ठीक, फिर थर्ड पोजीशन पे पूछा जाए तो ताइवान थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पर साउथ कोरिया एंड फिफ्थ पोजीशन पे आ जाता है आपका ब्राजील। ठीक है, अगर इंडिया की पॉइंट्स की बात करें तो इंडिया का क्या आपका इंडेक्स रहेगा, तो इंडिया का था 17.1% और ये एक्सपेक्टेड है 2024 के स्टार्टिंग में कि ये 20 टच कर जाएगा। अगर मैं बात करूं चाइना का कितना इंडेक्स है, वो है 26.6। चलिए, इवन हम देख रहे हैं इंडिया में पिछले 11 सालों में जो इंटरनेशनल मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला, फॉरेन कंट्रीज से जो इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला और हाईएस्ट इन्फ्लोज हमें देखने को मिले हैं इंडिया में इन द लास्ट 7 ईयर्स। इवन हम देखें तो इनवर्ड रेमिटेंस के हिसाब से भी इंडिया में वो एक लौती कंट्री है जिन्होंने $100 बिलियन का मार्क क्रैक किया और इस बार हम $100 बिलियन का, हमने $112 बिलियन का यहाँ पे इनवर्ड रेमिटेंस देखने को मिला है। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है, विच टू ऑर्गेनाइजेशन हैज अनवेल्ड इंडियन रेलवे फ्राइट एक्टिविटी इंडेक्स। IRFA इंडेक्स अभी लॉन्च करने वाली दो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, जर्मनी की फ्लोरिडा USA बेस्ड डन एंड ब्रैडस्ट्रीट एंड जुपिटर वैगन्स, करेक्ट, इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर अभी IRFA इंडेक्स को लॉन्च किया गया। ये लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द 15th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन। ये 15वां एडिशन था, प्रगति मैदान में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ, 12 से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में हुआ था 2023 में। ठीक है, उसके दौरान ये IRFA इंडेक्स को लॉन्च किया गया, करेक्ट। और ये IRFA इंडेक्स बेसिकली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टूल है जो कि इंडियन रेलवे फ्लाइट एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा और उसमें जो भी हम बेटर कर सकते हैं उस डाटा के एनालिसिस करके वहां पे हमें ऑप्शंस प्रोवाइड कराएगा। फिर जुपिटर वैगन्स की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, मिस्टर विवेक लोहिया, हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल और इसको 2006 में इनकॉर्पोरेट किया गया। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की बात करें तो MD एंड CEO रहेंगे अविनाश गुप्ता, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र एंड इसने अपने ऑपरेशंस 1995 में स्टार्ट करे थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री साइंड अ लेटर ऑफ अरेंजमेंट एंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये दो अभी साइन किए गए किस कंट्री के साथ, ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो देखेंगे, अगर हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो ये पहले तो ये देख लेते हैं किस कंट्री के साथ, तो इंडिया ने यूके के साथ यहां पर ये अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, अगर बात करूं मैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, ये बेसिकली इंडिया और यूके के बीच में साइन हुआ ताकि इंटरनेशनल कैडेट एक्सचेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया जा सके, कैडेट्स को एक्सचेंज कराया जा सके एक दूसरी कंट्रीज के बीच में। फिर लेटर ऑफ अरेंजमेंट जो साइन हुआ है इंडिया की DRDO एंड यूके की DSTL डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, इन दोनों के बीच में ये एक लेटर ऑफ अरेंजमेंट साइन हुआ ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके इन डिफेंस सेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है, अभी रिसेंटली इंडिया किस IIT ने एक नया कैंपस सेटअप करने की बात की इन श्रीलंका के कैंडी एरिया में एक नया IIT सेटअप करेंगे जो कि टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इंस्टीट्यूशन होगा। कौन सा IIT सेटअप करेगा, तो ये है IIT मद्रास, चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड IIT मद्रास एक नया टेक कैंपस सेटअप करेंगे कैंडी श्रीलंका में, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। और यहाँ से जो भी UGC यहाँ पे गाइडलाइंस देंगी, जो भी उनका करिकुलम होगा, जो भी यहाँ पर कोर्स बनेगा, वो सारा UGC के द्वारा अप्रूव करा जाएगा। नेक्स्ट अगर आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल बताओ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहां पर हुआ, अयोध्या में हुआ। फिर अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या रहेगा, वो है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर इसी के साथ साथ बताओ अभी रिसेंटली किस कंट्री ने रिजेक्ट कर दिया है ब्रिक्स की मेंबरशिप को, तो अर्जेंटीना ने रिजेक्ट कर दिया ब्रिक्स की मेंबरशिप को। ब्रिक्स की चेयरमैनशिप किसके पास रहेगी, रशिया के पास रहेगी, राइट। फिर अभी रिसेंटली इंडिया से कौन रिप्रेजेंट करेंगे युगांडा नाम समिट में, कौन रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को, वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए किनको सम्मानित किया गया था MS स्वामीनाथन अवार्ड से, तो प्रोफेसर BR कंबोज को यहाँ पे सम्मानित किया गया विद MS स्वामीनाथन अवार्ड। फिर अभी रिसेंटली डेजर्ट साइक्लोन, ये एक एक्सरसाइज हुई थी, राजस्थान में हुई, किन दो कंट्रीज के बीच में हुई, तो इंडिया एंड UAE के बीच में डेजर्ट साइक्लोन देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, SBI's proposed dollar denominated bonds gets which rating from S&P and Fitch। S&P and Fitch रेटिंग्स, इन दोनों के द्वारा अभी
एसबीआई के प्रपोज्ड डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को कौन सी रेटिंग मिली? तो ट्रिपल बी नेगेटिव रेटिंग यहां पर हमें देखने को मिलती है फॉर द एसबीआई प्रपोज्ड डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड, जो कि एसएनपी एंड फिच के द्वारा इनको कौन सी रेटिंग दी गई? ट्रिपल बी नेगेटिव की यहां पर रेटिंग दी गई है। यहां पर याद रखेंगे एसबीआई ने रेज किया $600 मिलियन वाया 5 ईयर सीनियर अनसिक्योर्ड फिक्स रेट नोट्स। करेक्ट, 5 साल की मैच्योरिटी रहेगी, कूपन रेट रहेगा 5% का, पेएबल सेमी एनुअली। ठीक है, और ये जो बॉन्ड्स है ये इशू किए जाएंगे थ्रू एसबीआई लंदन ब्रांच इन यूके एज ऑफ जनवरी 17 एंड इनको लिस्ट किया जाएगा सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज एंड इंडिया के जिफ्ट सिटी में इन अहमदाबाद, गुजरात। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं आईपीपीबी एंड किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया टू ऑफर फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज इन द रूरल एरियाज ऑफ राजस्थान। राजस्थान के रूरल एरियाज में सर्विसेज जैसे लोगों को हेल्प करना अपने बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, फिर उनके पेंशन प्लान के लिए, फिर कहाँ पर उनको लॉन्ग टर्म सेविंग करनी चाहिए, कहाँ पर उनको इन्वेस्टमेंट लेनी चाहिए, कहाँ पे लोन्स लेके वो अपने फ्यूचर को और सिक्योर कर सकते हैं किसी इन्वेस्टमेंट करके किसी प्रॉपर्टी में। तो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए आईपीपीबी ने अभी किनके साथ टाई अप किया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। एंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके अंडर यहाँ पे ये हेल्प करेंगे आईपीपीबी के साथ मिलके, ताकि रूरल एरियाज में ये सारी सर्विसेज पहुंचाई जा सकें, और इसी के लिए इनके बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। यहीं पर अगर हम देखें आईपीपीबी की बात, तो सीईओ कौन रहेंगे? वेंकटरमन जयंती, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, 2018 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें तो सीईओ अरुण मिश्रा, हेडक्वार्टर उदयपुर राजस्थान एंड 1966 में इसको इस्टेब्लिश करा गया। इसी के अलावा कुछ और क्वेश्चंस देखें, जैसे अभी रिसेंटली एक्सपोसेट, ये PSLV C-58 रॉकेट की मदद से एक्सपोसेट सैटेलाइट को स्पेस में भेजा गया, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? इसरो के द्वारा। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ जेमिनी की अगर मैं बात करूं, जेमिनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट। फिर इसी के साथ साथ किन्होंने अभी अंडर 19 का स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप को जीत लिया है अंडर 19 कैटेगरी में? वो है अनाहत, राइट। इन्होंने स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश टाइटल को जीत लिया फॉर अंडर 19। इसी के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं ग्लोबल फैमिली डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 1 जनवरी को। वर्ल्ड डे ऑफ पीस कब ऑब्जर्व करते हैं? 1 जनवरी को। कॉपीराइट लॉ डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 1 जनवरी को। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज विल इंक्लूड इंडियाज FAR बॉन्ड्स इनटू देयर एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स फ्रॉम डैश। तो अभी रिसेंटली ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज लिमिटेड ये इंक्लूड करेंगे इंडिया के FAR, जो कि होता है फुल्ली असेसिबल रूट बॉन्ड्स को, इनटू देयर एमर्जिंग मार्केट लोकल करेंसी इंडेक्स फ्रॉम सितंबर 2024। ठीक है, एंड एज पर्पज द प्रपोजल इंडियन गवर्नमेंट वोल्स विल बी फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग स्पेनिंग ओवर 5 मंथ्स। मतलब फेज्ड वाइज ये यहाँ पर इनकी इंप्लीमेंटेशन की जाएंगी ओवर 5 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 2024 और जनवरी 2025 तक जाके ये सारे यहाँ पर लिस्ट किए जाएंगे। एंड इवन सितंबर 2023 में यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने बोला था कि इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स विल बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स एमर्जिंग मार्केट ग्लोबल इंडेक्स सूट फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे जब ये स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद इंडियन रुपी विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट currency component following the Chinese renminbi and South Korean won within the Bloomberg Emerging Market Local Currency Index. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विच हैज रिसेंटली बीन इन न्यूज। दूसरा, हु इज द ऑथर ऑफ तमिल नॉवल नाथान औरंगजेब कन्वर्सेशन विद औरंगजेब। करेक्ट, कौन है इस बुक के ऑथर। तीसरा, किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किया एक एग्रीमेंट विद USA टू परचेज टोमाहक मिसाइल। फोर्थ, विच स्टेट लॉन्च्ड माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन फॉर एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन। एंड पांचवा, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी रिसेंटली न्यूज, ये किस स्टेट में लोकेटेड है। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.